Hello friends, welcome to my channel. So I know actually today I have uh, hi. So today I have basically scheduled this meeting in a very you can say short while. So you guys might not be aware or not got the time to join. Anyone joined today? Mohit, I could see Mohit. Hello, Mohit. Hello. Hello. Hey, hi Mohit. I think you are on mute. Can you hear me, Mohit? Hello. 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 Hey, hi Mohit. Can you hear me? Hi. Yeah. Okay. Let's wait for a couple of minutes. Otherwise, we will start. Okay. So Mohit, where are Hello. you from? Hello. I'm from Haryana, Haryana. Okay. Hi. Haryana, which area? Like which districts and from Bhiwani. all? Okay. Bhiwani. You are from? I'm from Nagpur. So actually, I Okay. used to work in Pune. Okay. So due to lockdown, I'm working Okay. from my hometown. That is Nagpur, Maharashtra. Okay. Okay. Do you have any background about this technical analysis? Have you done any course anywhere or just joined recently in the market? Just joined recently. Okay, okay, not an issue. I don't think so. Anybody is available. Not sure. Actually, मुझे कहीं जाना था, so that's why I decided to have a quick session today. Otherwise, Oh, no problem. so Mohit, let's I think start. Okay. Meanwhile, I think some people will join. Okay. Sure. Sure. Let me share my screen quickly. So Mohit, can you see my screen? Yeah. I can see your Okay. screen. Okay, I just opened this Telegram. Sorry, this Trading View. Okay. So which tool you use for viewing chart, or you don't see that? You don't see any chart or anything, or you see any. I've just started right now. I don't use anything. I've just started. Mhm. So just open your account in this Trading View, right? Just open a free account. It is not like don't go for the paid version. Free is also enough for the Okay. new people who are generally doing this. The swing trade or trade for the long term, right? Just open the account here. Just log in with your Google account as also. Will also be fine for you. Okay. So Sure. don't worry. Yeah. Okay. So just go.
open few websites. Okay, let me, why it is coming down. Yeah. So open few account like create one account in the screener.in. This is also a free website. Okay, and in this free website, I mean, you can customize few details like you can create fundamental screens here. Okay, right? Like उसका ROE क्या होता है, ROC के बेसिस पे प्रॉफिट कितना हुआ है, डेट कुछ है तो वो कितना है, मार्केट कैपिटल कितना है, ऑल दोस जार्गन्स उसके बेसिस पे आप यहाँ पे स्क्रीन क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो उससे क्या होगा कि मतलब आगे जाके जैसे जैसे मैंने देखो यहाँ पे ये तीन ही ऑप्शन है, फीड, स्क्रीन एंड टूल। तो आप स्क्रीन पे जाओगे ना तो आई हैव क्रिएटेड मल्टीपल स्क्रीन्स, मतलब ये मल्टीपल स्क्रीनर्स मैंने बना के रखे। अगर आप किसी स्क्रीनर के अच्छा। अंदर जाओगे ना तो यहाँ पे आप बना सकते हो, जैसे प्रमोटर होल्डिंग कितना होना चाहिए। तो जैसे मैंने ये बहुत स्ट्रिक्ट रूल बना के रखे थे जो अपने लॉकडाउन के पहले काम करते थे, बट लॉकडाउन में सिंस बहुत सारे कंपनीज का रिजल्ट खराब हुआ है ना, तो इसीलिए ये जो स्क्रीनर्स है वो थोड़ा हमको थोड़ी ढिलाई देनी पड़ती है। जैसे कैपिटल एम्प्लॉयड 25% अभी बहुत ही अच्छे कंपनीज है उन्हीं का बचा है एटलीस्ट लास्ट ईयर में। तो थोड़ा सा इसमें आप जैसे 25 है तो यहाँ पे 15 कर दो। ओके, रिटर्न ऑन इक्विटी अगर किसी का है तो किसी को आपको 10 कर दो, तो थोड़ा आप ढीला कर दो, तो यू विल स्टिल सी सम गुड कंपनीज जो है। ठीक है, तो जैसे आप रन करोगे ना, सॉरी आप स्पेस का इशू, तो जैसे आप रन करोगे ये स्क्रीन्स तो आपको बहुत सारी कंपनीज मिलेगी जो बहुत ही फंडामेंटली अच्छी कंपनीज है। ऐसे है तो ये एक वेबसाइट है स्क्रीनर। ये मैं आपको बताऊंगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम इसमें कैसे हम लोग को ऐड करना है, मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें रहती है। ठीक है, जस्ट एक आपको सिंप्लिसिटी बताने के लिए जस्ट इस पे कुछ भी चीज़ आप ऐड करते हो ना तो ये खुद ही सजेस्ट करता है। जैसे जैसे मैंने यहाँ पे डाला ना रिटर्न, तो यहाँ पे आ जाता है रिटर्न अच्छा। ऑन अच्छा। एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो एक वर्ड भी डालोगे तो वो आ जाता है। जैसे सेल्स भी अगर डालोगे ना, सेल्स, तो आ जाता है सेल्स ग्रोथ 3 ईयर एवरेज, 5 ईयर एवरेज, लास्ट क्वार्टर का एंड ऑल दो स्टफ्स। जैसे यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग डालोगे ना तो प्राइस टू अर्निंग के लिए भी आ जाता है, तो वो खुद ही सजेस्ट करता है ठीक। बेसिकली। ठीक है, तो आप बहुत ही ईजी है मतलब यहाँ पे तो, और ये फ्री भी है तो इसीलिए बहुत अच्छा है। तो वैसे ये screeners.in है, ट्रेडिंग व्यू है। ओके, एंड एक और है जो मैं टेक्निकल के लिए यूज़ करता हूँ, वो है चार्टिंग करके। स्क्रीनर्स मिलते हैं उस पे तो, जो चार्टिंग जो है उस पे। हाँ, चार्टिंग जो है ना वो चार्टिंग पे हमारे टेक्निकल स्क्रीनर्स और फंडामेंटल स्क्रीनर्स दोनों होते हैं। जैसे ये ना अच्छा। इस तरीके का खुलेगा, यहाँ पे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना, ये तीनों अकाउंट में, ट्रेडिंग व्यू में, चार्टिंग में और screeners.in में। ये तीनों फ्री फ्री वाले टूल्स है। आप बस फ्री वाला ये ले लेना, मतलब पेड है उसमें, पेड में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐड होगी, तो बस इसमें आपको बस कुछ कुछ फ्री अकाउंट क्रिएट करके छोड़ देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कैसे क्रिएट करना है। तो इसमें ना आप बहुत सारे टेक्निकल स्क्रीन्स क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ये बहुत सारे स्क्रीनर्स क्रिएट करके रख दिए। जैसे यहाँ पे जाओगे ना, यहाँ पे ये डैशबोर्ड रहता है, तो डैशबोर्ड में जो जो स्क्रीनर्स आप ऐड करते हो ना तो वो यहाँ पे खुलना शुरू हो जाते हैं, अगर सॉरी ऐड होना शुरू हो जाते हैं। यू कैन हैव इट। जैसे देखिए, तो यहाँ पे मैंने ये देखो, ये मैंने कुछ रूल्स बना के रखे हैं। जैसे कोई अगर स्टॉक है जो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर गया है और 5% ऊपर है, ओके, ऊपर जाके 5% ऊपर है, और 5 दिनों पहले वो 200 मूविंग एवरेज के नीचे था, बेसिकली नीचे से ऊपर गया, ऐसा था। तो कोई एक मूविंग एवरेज है 200 मूविंग एवरेज, आपने सुना होगा। तो उसके ऊपर जैसे ही फर्स्ट टाइम जाता है और जाने के आई मीन जाता है नीचे से एंड 5% ऊपर जाके सस्टेन करता है। बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि कोई अगर फॉल्स ब्रेकआउट है, मतलब दो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर गया, एक कैंडल क्रिएट किया एंड देन नीचे आके गिर गया, वैसा डिप हो गया, तो उनको अवॉइड करने के लिए मैंने ये 5% का रूल बनाया है। 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है आपने पाँच शेयर परसेंट भी किया था टेलीग्राम ग्रुप पे शायद ये। हाँ हाँ, तो वो एक सिंपल सिंपल यहाँ पे रूल्स आप बना सकते हो। अभी यहाँ पे ना आप अपना वो भी चेंज कर सकते हो, जैसे आपको ये पूरा जितने भी कैश के स्टॉक्स है उस पे करना है क्या, बैंक निफ्टी पे करना है क्या, ईटीएफ पे करना है क्या, फ्यूचर, मतलब निफ्टी 500, निफ्टी 50, ये आपका यूनिवर्स आप अपनी डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे।
तो ये चीज़ है। तो बेसिकली ये 3 वेबसाइट्स है, screeners.in, जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ पे एक ना, यार ये नीचे आ रहा है, आई डोंट नो क्यों बीच में आता है। तो बेसिकली ये 3 है वेबसाइट्स, ओके। स्क्रीनर्स, सॉरी, screeners.in है, ठीक है। इसमें आपको एक फ्री अकाउंट बनाना है। लेट मी एक नोटपैड पे ओपन करते हैं क्विकली। ठीक है, तो फ्री अकाउंट कहाँ कहाँ पे क्रिएट करने हैं? स्क्रीनर्स है, एक है ये ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? इसमें ना ये चार्ट वार्ट जो रहते हैं ना वो बहुत अच्छे दिखते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, ठीक है। अच्छा। आपका अभी जो अकाउंट है वो किस साथ है, मतलब जीरोधा में है या कोटक या किस में है? जीरो था। ब्रोकिंग जीरोधा में है ना, तो जीरोधा का भी काइट अच्छा है, उसमें कुछ इश्यू नहीं है। बट जीरोधा काइट में कभी कभी क्या होता है ना, उनका जो चार्ट होता है ना वो थोड़ा डिस्टॉर्टेड होता है कभी कभी। मेरा भी जीरोधा में ही है, बट थोड़ा उनका ना चार्ट थोड़ा डिस्टॉर्टेड होता है। डिस्टॉर्टेड इन द सेंस, मतलब कभी कभी उनका जो होता है ना हाई लो जो होता है ना, वो प्रॉपरली वो लोग कैप्चर नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो भी मैं लिख लेता हूँ, अच्छा। अगर किसी के पास काइट डॉट है, काइट डॉट जीरोधा है तो, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने हमको कुछ फ्री अकाउंट्स बना के रख देना है, ठीक है। फ्री अकाउंट्स हमको क्रिएट करने हैं, फ्री अकाउंट्स, ओके। इसमें आप कुछ और भी ऐड कर सकते हो, जैसे मनी कंट्रोल है जो हमको थोड़ा बहुत न्यूज़ देती है, वो वेबसाइट्स moneycontrol.com, ठीक है, एंड investing.com, ठीक है। ये एटलीस्ट ये इतने सारे वेबसाइट्स है जहाँ पे हमको एटलीस्ट फ्री अकाउंट बना के रख देना है, ठीक है। तो लेट्स गो अहेड विद, सो मनीष, आप अभी वहाँ पे जॉब करते हो, बिजनेस करते हो? नहीं, बिजनेस है। बिजनेस है, ओके। तो आपको ऐसे इंट्राडे के लिए तो टाइम नहीं मिलता होगा, राइट? कि मिलता है टाइम? नहीं 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 नहीं। मिल पाता है ना, राइट राइट। तो मैं अभी आपको मतलब मेरे बहुत सारे लोग मतलब जो इसमें है, टीम में है, वो वैसे ही है। और इवन मैं खुद भी इंट्राडे नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं भी एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करता हूँ, जहाँ पे मुझे मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि मैं अकाउंट क्रिएट करता हूँ और वो सॉरी, आई मीन ट्रेड ओपन करता हूँ, एंड जैसे ही मैं ट्रेड ओपन करता हूँ मेरा अ, मतलब वो भागने लगता है और मेरा मीटिंग आ जाता है बीच में, या फिर कोई पिंग कर देता है बीच अच्छा। में। तो बहुत बार मेरा प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत बार फुल प्रॉफिट नहीं ले पाता हूँ एंड ऑल दो स्टफ्स। तो इसीलिए मैंने क्लोज करना पड़ता होगा ट्रेड। हाँ, बहुत बार मुझे फुल प्रॉफिट नहीं ले पाता, तो मैं क्या करता हूँ, ट्रेड ले लेता हूँ, स्टॉप लॉस डाल के छोड़ देता हूँ, एंड जो भी प्रॉफिट होता अच्छा। है फिर जैसे ही टाइम मिलता है बुक कर लेता हूँ, इस तरह करता हूँ। तो बहुत बार मैं इंट्राडे नहीं कर पाता हूँ उसके कारण। और अभी तो कैसा है ना कि वो इंट्राडे के उन्होंने रूल्स लगा के रख दिए ना कि अगर आप इंट्राडे का पोजीशन अगर दिन में स्क्वायर अप नहीं करोगे तो यू विल बी हैव अ पेनल्टी। हालांकि नॉमिनल है, बट इट्स अ पेनल्टी पेनल्टी लाइक लगती है। 50 रुपीज। हाँ, कुछ 50 रुपीज का, 100 रुपीज का कुछ पेनल्टी है उसमें, राइट। एटलीस्ट जीरोधा में राइट है, राइट। राइट। तो ओके, तो बेसिकली कैसा है ना कि लेट्स स्टार्ट, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली हमारे पास एक टेक्निकल एनालिसिस है, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस है, ठीक है। तो बेसिकली जो टेक्निकल एनालिसिस होता है ना, उसमें क्या होता है कि उसमें आप सी, ये जो टेक्निकल एनालिसिस है, फंडामेंटल एनालिसिस है, ओके। बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस का जो क्या बोलते हैं, एक मेन फंडा क्या है कि इट ऑलवेज डिपेंड ऑन द पास्ट, कि पास्ट में वो शेयर ने कैसे बिहेव किया था। मतलब लेट्स कंसिडर एक कोई स्टॉक है, जैसे एक अगर हम लोग आईटीसी को कंसिडर करें, राइट। तो अगर आईटीसी का अगर आपने चार्ट देखा होगा ना, तो वो 160 150 के बीच में रुकता ही रुकता है, ओके।
और नीचे जब जाता है ना तो नीचे में मोस्टली 200 के पास रुकता है। अगर आप देखोगे तो ये रेंज में वो आईटीसी घूम रहे हैं बेसिकली। ओके, तो दिस इज, तो इसमें क्या हो गया कि इसमें मैंने पास से एक एनालिसिस निकालने की कोशिश की कि ये मेरा आईटीसी का मतलब किस तरह बिहेव करता है। ओके, वैसे ही बहुत लोग स्टॉक पे मूविंग एवरेजेस डालते हैं। ओके, तो मैं जाऊंगा इसमें, बट मैं जैसे अभी बता रहा हूँ, डेप्थ में वी विल सी लेटर। तो मूविंग एवरेजेस होते हैं 10, 20, 50, 100, 200 और एक 430 का डालते हैं कोई कोई। ओके, तो बेसिकली कैसा है कि हम लोग ये मूविंग एवरेज के बेसिस पे डिसाइड करते हैं। जैसे कुछ कुछ स्टॉक्स होते हैं वो 20 डे का मूविंग एवरेज बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आपने इसका चार्ट देखा होगा, लेट मी, मैं आपको ओपन करके दिखा, तो जो स्टॉक्स बहुत ही ज़्यादा भाग रहे, राइट, जो ज़्यादा, जैसे डिक्सन वगैरह है, लेट मी इसका चार्ट ओपन करते हैं। Your voice is breaking in between. ओके, जस्ट अ मिनट। अभी सही है वॉल्यूम, वॉइस? हाँ, आप सही है, अभी सही है। ओके, राइट। तो मैंने डिक्सन टेक्नोलॉजीज का चार्ट ओपन किया है। सी ट्रेडिंग व्यू में ऐसे चार्ट ओपन होता है। मैं जनरली मूविंग एवरेजेस यूज़ नहीं करता हूँ, मैं वो थोड़ा प्राइस एक्शन पे ही खेलता हूँ। बट शुरुआत में मैंने भी मूविंग एवरेज से ही शुरुआत करी थी, क्योंकि कहीं किसी भी क्लास में आप अगर जाओगे ना तो आपको वो पहले ही मूविंग एवरेज ही सिखाते हैं, क्योंकि वो बहुत इजी होता है समझने के लिए। तो अगर आप ये जो येलो लाइन है ना, ये येलो लाइन अगर आप देखोगे, मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ। ओके, ये कलर चेंज कर देता हूँ, लेट्स पिक पिंक। ठीक है, तो अब अभी अगर आप डिक्सन को देखोगे ना, तो यहाँ से देखिए डिक्सन को, और ये जो नेक्स्ट मूविंग एवरेज है ना, दैट इज एक्चुअली अ 50 डे मूविंग एवरेज। द फर्स्ट वन इज द 20 एंड नेक्स्ट इज अ 50। उसका भी थोड़ा डार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी अगर आप देखोगे ना, ये नीचे वाले मूविंग एवरेज छोड़ दो आप। ठीक है, तो ये जब से ये डिक्सन लिस्ट हुआ है ना, मैं ये सब हटा देता हूँ आसानी के लिए, राइट। तो अगर आप देखोगे ना, तो जब से ये शुरू हुआ है, राइट, मूविंग एवरेज डिक्सन का स्टॉक जब से लिस्ट हुआ है, आप देखोगे ये 20 मूविंग एवरेज, ये जो पिंक लाइन है वो, ठीक है, 20 मूविंग एवरेज, और ये जो नीचे वाला 50 मूविंग एवरेज है, इसके नीचे जाता नहीं है। यहाँ पे देखो, देखो 20 को टच, ये देखो 50 को टच किया ऊपर चला गया, वापस 50 को टच किया फिर से ऊपर चला गया, फिर 20 को टच किया यहाँ से ऊपर निकल गया, फिर ये 20 को टच किया यहाँ से वापस ऊपर निकल गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 50 के आसपास आया, यहीं पे टाइम पास किया, वापस ऊपर निकल गया। राइट, यहाँ पे देखिए 50 को टच किया वापस निकल गया, 50 को, ये वापस 20 के आसपास यहीं पे टाइम पास किया, वापस ऊपर निकल गया, यहाँ पे फिर से 20 के आसपास इसने टाइम बिताया, फिर से ये ऊपर निकल गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ से फिर से 20 को टच किया फिर से ऊपर निकल गया। तो बेसिकली बोलने का मतलब क्या है कि टेक्निकल एनालिसिस कुछ नहीं है। तो अगले बार जब भी ये 20 मूविंग एवरेज के आसपास आएगा ना, हम लोग अगर बाय करेंगे तो वी विल बी इन अ प्रॉफिट। ओके, और हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, हमारा 50 डे मूविंग एवरेज। 50 डे के नीचे चला जाएगा तो हम लोग एग्जिट कर लेंगे। ऐसे सिंपल स्ट्रेटेजी भी हम लोग बना सकते हैं, इसके लिए बहुत कुछ कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ऐसे ही बहुत सारे इंडिकेटर के बेस पे लोग खेलते हैं, एंड उसी के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि आ, तो बेसिकली इसी को टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं बहुत लोग। ओके, कि अलग अलग इंडिकेटर्स मैंने डाले, एंड जैसे ही मैंने अलग अलग इंडिकेटर्स डाले, उस इंडिकेटर के बेसिस पे मेरा स्टॉक कैसे चलता है। ओके, हम लोग अगर आईटीसी देखेंगे ना, आईटीसी में आपको दिखाता हूँ।
ठीक है, मैं अभी ये सब हटा देता हूँ। ये देखिए, सॉरी। तो अगर आप देखोगे ना आईटीसी को, ये देखिए आईटीसी का कैसा है। ये देखो, मैंने जिससे बोला था ना, ये 200 और ये 240 के अराउंड अभी ये रेंज, ठीक है। और एक छोटा ये रेंज ये है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए ये रेंज में बहुत ज़्यादा टाइम बिताता है आईटीसी, ठीक है। तो जब भी अगर हमको एंट्री करनी है तो सिंपली अगर ये रेंज के बाहर जैसे ही निकलेगा ना, अगर हम लोग एंट्री करेंगे तो हम लोग को यहाँ तक प्रॉफिट मिल जाएगा आराम से, ओके। और अगर कोई इसके बाहर निकलेगा तो वो तो ब्लू स्काई जोन में, तो ही विल ऑन एनीवे। तो बेसिकली कैसा है कि पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे यहाँ पे देखिए ये वाला जो रेंज है, ये वाला जो रेंज है, वो रेंज में अभी भी वो आईटीसी सपोर्ट लेता है, एवरी टाइम यहाँ पे लेता है, सपोर्ट लेता है। इसके पहले ये रेंज पे रेजिस्टेंस ले रहा था, यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ पे जाता था, फिर नीचे गिरा, यहाँ पे गया, फिर नीचे गिरा, यहाँ पे गया, फिर नीचे गिरा। तो बेसिकली ये जो रेंज था, वो रेंज पे पहले रेजिस्टेंस था, अभी वो सपोर्ट का काम कर रहा है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम लोग बाद में देखेंगे। सो बेसिकली मेरा बोलने का मतलब यही है कि टेक्निकल एनालिसिस जो होता है ना, वो पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे, पास्ट बिहेवियर के बेसिस पे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, या फ्यूचर में वो रेंज को वो रिस्पेक्ट करेगा। इस तरह से हम लोग टेक्निकल एनालिसिस पे मतलब टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस हम लोग सोचते हैं उसमें, ठीक है। और जो हमारा फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है ना, फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पास्ट का कुछ डेटा लेते हैं, जैसे पास्ट में उसका क्या सेल्स था, सेल्स ग्रोथ क्या था, क्या उसमें कुछ डेट था, क्या क्या उसमें आई मीन प्रॉफिट कितना था, प्रोडक्ट कितने बेचे, सप्लायर के साथ कुछ इश्यू तो नहीं हुआ, या फिर पास्ट जो भी आई मीन कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाले इश्यू तो नहीं थे, जैसे जैसे किसी के अगेंस्ट में एफआईआर तो नहीं हुआ। जैसे अगर आपने सुना होगा जयप्रकाश एसोसिएट्स के बहुत सारे प्रमोटर के अगेंस्ट में एफआईआर लॉन्च हुए थे, माल्या के अगेंस्ट में बहुत सारे एफआईआर लॉन्च हुए थे, ओके। सेम गोज विथ जो अपना अनिल अंबानी है, उन्होंने डेट नहीं पे किया था, उनका पॉलिटिकल बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ बहुत ज़्यादा उठना बैठना था, तो वो बेसिकली वो कंपनी में कम और अमर सिंह के साथ ज़्यादा घूमते थे, ओके। तो बेसिकली ये सब चीज़ें जो होती है ना, वो भी हमको देखनी पड़ती है, ओके। तो ये रहा फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोगों ने पास्ट के बेसिस पे कुछ चीज़ें हमने सोची। बट मेन जो फंडामेंटल एनालिसिस है ना, वो ये है कि मैं ये डिसाइड कर सकूं कि व्हाट विल बी इट्स फ्यूचर बिहेवियर। फ्यूचर बिहेवियर इन द सेंस, ये जो कंपनी है, जैसे इंश्योरेंस का कंपनी कंसिडर कर लो, या फिर देखो अभी हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल का बहुत बूम आ रहा है, राइट। एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ओके। एनीवे इंडिया जैसे कंट्री में इलेक्ट्रिक व्हीकल का इतना जल्दी हो नहीं सकता, बिकॉज अगर आप सोचोगे तो हमारा जो कंट्री है ना, वो बहुत बड़ा कंट्री है, वास्ट कंट्री है, एंड डेवलपमेंट हमारे कंट्री में बहुत कम है। फर्स्ट थिंग इज इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ना, वो बहुत कॉस्टली होते हैं, बिकॉज बैटरी एंड ऑल वो नई चीज़ है, उन्होंने अभी अभी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, तो उनका भी ऐसा है कि उसमें कुछ पैसा निकाला जाए, ओके, ताकि हमारा कुछ प्रॉफिट आए, तो देन वी विल अगेन पुट दैट मनी इनटू R&D और सस्ती से सस्ती बैटरी बनाने की कोशिश हो, ओके। तो क्या कर रहे हैं ये लोग कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल तो बना दिया, बट वो चल कहाँ रहा है, सिटी के लिए। क्योंकि अगर मैंने एक स्टेट में भी अगर घूमने का सोचा, आप हरियाणा से दिल्ली भी जाते हो, ओके, तो उसमें भी आपको एक बार चार्ज करना पड़ेगा, ओके। और इनको अगर चार्ज करते हैं ना, तो उनका एक बार चार्ज का अराउंड 7 से 8 घंटा लग रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल में। तो राइट राइट। बेसिकली जब तक आपको वो प्लांट नहीं लगेंगे, जब तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, उसके लिए पैसा कौन देगा, ऑल दो स्टफ्स। तो बेसिकली हमको सोचना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए क्या हम लोग डायरेक्टली कार पे चले जाएं, या फिर हम लोग ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जो कभी नहीं बदलने वाला, जैसे टायर है, स्पीडोमीटर्स है, वाइफर्स है, ओके, फ्लड लाइट्स है, बहुत सारे जो भी इक्विपमेंट्स है जो
मेरे मशीन छोड़ के, जो अंडरलाइंग मशीन है, अगर वो छोड़ के बाकी सब चीज़ें जैसे सीटिंग है, सीट्स है, तो ये सब चीज़ों पे इलेक्ट्रिक व्हीकल देखो कैसे होगा। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगा ना, तो जो अपने इसके व्हीकल है पेट्रोल वाले, उसमें डिसरप्शन होगा। डिसरप्शन इन द सेंस, पेट्रोल अभी देखो गवर्नमेंट सस्ता क्यों नहीं कर रही है, बिकॉज गवर्नमेंट वांट कि हम लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ जाए, या फिर हम लोग सीएनजी पीएनजी की तरफ जाए। ओके, तो बेसिकली गवर्नमेंट वांट कि हम लोग उधर जाए, इसलिए गवर्नमेंट उसको सस्ता ही नहीं कर रही। और गवर्नमेंट सस्ता करेगी भी नहीं, वो थोड़ा हाई पे ही रखेगी। बिकॉज सस्ता करेगी तो लोग पेट्रोल डीजल पे ही जाएंगे, पेट्रोल डीजल की चीज़ें ही खरीदेंगे। तो बेसिकली गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट हमको पुश कर रही है कि तुम इलेक्ट्रिक व्हीकल को ही लो। ओके, अगर तुमको ऑप्शन है पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल, तो गवर्नमेंट ऐसी बोलती है कि तुमको फ्यूल भी सस्ता ना मिले ताकि तुम उस पर ही पुश हो जाओ। ओके, तो लोग क्या कर रहे हैं, अभी नई गाड़ियां जो खरीद रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहे हैं। अभी हो क्या रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल एक खरीद के तो प्रॉब्लम नहीं रख सकते, क्योंकि अगर किसी हरियाणा वाले को कुल्लू मनाली जाना है, तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल से जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। तो इलेक्ट्रिक नहीं व्हीकल वाला, राइट, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला क्या कर रहा है कि सिटी के लिए, जॉब जॉब या बिजनेस तक जाने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज कर रहा है। एंड जो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, उसके लिए और एक कार उसको रखनी पड़ रही है जो पेट्रोल पे चल रही है या डीजल पे चल रही है, राइट। तो बेसिकली इस तरीके से क्या हो रहा है कि जो बंदा एक कार रखता था, वो अभी दो कार रख रहा है, राइट। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि डिमांड जो है ना बाकी चीज़ों की, जैसे सीटिंग है, फ्लड लाइट, जैसे मैंने वो बोला, टायर्स एंड ऑल दो स्टफ्स, स्पीडोमीटर्स एंड ऑल दो स्टफ, तो उनका डिमांड मल्टीपोल्ड हो रहा है। वाइफर्स, राइट, उनका डिमांड मल्टीपोल्ड हो रहा है। बट जो इंजन है, अंडरलाइंग इंजन या उसके रिलेटेड जो स्टफ्स रहती है, उसका डिमांड घट जाएगा, राइट। इसीलिए तुम देखोगे तो ऐसे बिजनेस में अगर हम लोग सोचेंगे कि ऐसे मेरा बिजनेस बढ़ेगा, तो कल जाके अगर मैं बोलूँगा कि मैं कोई अच्छा टायर कंपनी खरीद लेता हूँ, या फिर जैसे प्रीकॉल है जो स्पीडोमीटर बनाता है, इनको खरीद लेता हूँ, तो मेरा बिजनेस तो मर नहीं रहा है, वो तो चलते ही जाएगा। ठीक है। सेकंड एग्जांपल, अगर अगर तुम सोचोगे, पहले हम लोग जो ये यूज़ करते थे, टूथब्रश यूज़ करते थे, तो हम लोग दिन में एक ही बार यूज़ करते थे। अभी क्या हो गया, उन्होंने टूथब्रश जो था वो उन्होंने ऐसे पुश किया कि दिन में 2 बार यूज़ करो। तो लोग उतने ही हैं, डिमांड बढ़ गई, राइट। तो इस तरह से वो लोग बिजनेस को सेटअप करते हैं कि हम लोग का डिमांड कैसे बढ़े। जैसे अभी हीरो का गाड़ी है, हीरो या बजाज है, वो अगर आप देखोगे ना, तो वो इंडिया मार्केट से उठ के साउथ अफ्रीका मार्केट या अफ्रीका कॉन्टिनेंट मार्केट, या फिर जहाँ पे थोड़ा गरीबी है, जहाँ पे टू व्हीलर ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, वहाँ पे ज़्यादा ये लोग पुश कर रहे हैं। बिकॉज इंडिया में तो डिमांड उतनी ही है, इंडिया में कितनी बिकेंगी, राइट। इंडिया में ऊपर से इलेक्ट्रिक व्हीकल डिस्ट्रप्शन भी है, तो ये लोग उधर भाग रहे हैं। सेम गोज विद एयरटेल। एयरटेल का अगर तुमने रिजल्ट देखा होगा, इंडिया में उसका रिजल्ट ठीक ठाक है, मतलब लोग बड़े हैं, बट इंडिया में जो इंटरनेट चार्जेस है ना, वो बहुत कम है। ये लोग बाहर जाते हैं तो बिजनेस बढ़ा रहे हैं। तो बेसिकली बोलने का मतलब क्या है कि फंडामेंटल एनालिसिस का मेन क्रस्ट ये है कि हमको हमारा जो बिजनेस है ना, वो बिजनेस एनालिसिस करना होता है। देखो, पास जो है ना वो सबको पता है, राइट, कि ये कंपनी ने पास्ट में क्या रिजल्ट दिया था, पास्ट में डेट कितना था, पास्ट में डेट कितना कम किया। जो नए प्रोजेक्ट उनके पास है, उनको ये लोग कैसे डिलीवर करते हैं, उसके बेसिस पे उसका फ्यूचर डिसाइड होता है। जैसे अगर आप देखोगे, एल है या एनबीसीसी है, जो भी ये जो कंस्ट्रक्शन की कंपनीज है ना, उनके पास प्रोजेक्ट्स बहुत है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उनके पास पड़े हैं, बहुत सारे पाइपलाइन में। बड़े लोग का डिलीवरी जो रेट है ना, वो कम है, इसीलिए एल हो या एनबीसीसी हो, वो कंसिडरेबली बहुत कम बढ़ती है। आप कभी जाके देखना, उनका जो फ्यूचर जो स्टॉक्स है ना, उनके पास बहुत है। फ्यूचर के जो प्रोजेक्ट्स है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है, डीआरडीओ के प्रोजेक्ट्स है, ये एंड ऑल। बट उनका पैसा बहुत लेट आता है, क्योंकि उनके मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट रिलेटेड होते हैं, या फिर बहुत लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है। जैसे उनको पाइपलाइन डालनी है भाई, तो पाइपलाइन डालनी है लेट से इंडिया से अफगानिस्तान तक, तो ये जो पाइपलाइन डालने का कॉस्ट है, वो उनको बहुत लेट मिलता है। इसलिए इनका जो बिजनेस है ना, तो पैसा आता है इनका, बट बहुत डिलेड आता है। तो इसके कारण वो लोग पैसा जो रहता है ना, मतलब पैसा लेट आने के कारण उनका जो बिजनेस साइकिल है, जो कैश फ्लो है, वो उनका बहुत मतलब लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड है। सेम गोज विद पावर कंपनी, शुगर कंपनीज, जहाँ पे गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत है, तो ऐसे जगह पे पैसे डालने से बचना चाहिए। तो बेसिकली ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब चीज़ें हमको बिजनेस एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस में करनी पड़ती है, राइट।
तो ये हमारा बेसिकली दो मेन डिफरेंस है। टेक्निकल एनालिसिस जो होता है ना, वो क्या होता है कि वो हम लोग रिएक्टिव होता है भाई कि मेरा जो स्टॉक है वो मूविंग एवरेज को टच कर दिया और अभी वो ऊपर के ऊपर निकल रहा है, तो उसमें एंट्री करना है फॉर लॉन्ग स्विंग। दैट इज अ टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस जो होता है ना, दैट इज कम्प्लीटली अ रिएक्टिव थिंग। ओके। और फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है ना, दैट इज कम्प्लीटली अ प्रोएक्टिव थिंग। मतलब वो स्टॉक भागने के पहले मैं बिजनेस एनालिसिस कर लूँ कि भाई ये जो मेरा स्टॉक है, ये जो मेरा बिजनेस है, ये अच्छा है, आगे जाके अच्छा हो सकता है, ग्रोथ बढ़ सकता है। जैसे कोविड के टाइम पे अगर आपने देखा होगा कि कोविड के टाइम पे बहुत सारे इंश्योरेंस के क्लेम आए, मैं वो मानता हूँ। बट ड्यू टू दैट कोविड बहुत लोग इतने घबरा गए ना कि उन्होंने बहुत सारे इंश्योरेंस ओपन किए। बट उसका जो इफेक्ट है ना, वो हमको अभी नहीं दिखेगा, वो हमको दिखेगा थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। तो ऐसे जो बिजनेसेस है ना, हमको वो पहले एनालिसिस करने पड़ते हैं। तो बेसिकली ऐसे ही वो डिफरेंस है। टेक्निकल एनालिसिस इज मोर ऑफ, तो जो भी कोई अगर हम लोग कोई स्टॉक उठाते हैं ना, तो जो हमारा 50% होता है ना उस स्टॉक में, वो हमारा फंडामेंटल एनालिसिस होता है। क्योंकि अगर हम लोगों ने फंडामेंटली बैड स्टॉक चूज कर लिए, राइट, तो फिर टेक्निकल एनालिसिस का कोई मतलब ही नहीं है। वो 10-20% ऊपर जाएगा और एक दिन ऐसा गिरेगा या फिर ऐसे लोअर सर्किट्स मारेगा कि कोई निकल भी नहीं पाएगा, राइट। तो फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है ना, वो हमारा 50% गवर्न करता है कोई भी स्टॉक में। इसलिए अगर आप देखोगे मेरे चैनल पे भी, तो वो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में जो देता हूँ ना, वो फंडामेंटली बहुत ही अच्छे होते हैं। या तो वो निफ्टी फिफ्टी के पार्ट होते हैं, हो सकता है कि अभी टाइम खराब चल रहा है, बट मोस्टली फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स होते हैं। ठीक है। सेकंड थिंग, फंडामेंटल के बाद जो मेरा मतलब जो हमारा इकोनॉमी है ना, दैट एक्चुअली, या फिर जो भी मार्केट है हमारा एक्चुअली, वो मेरा 30% चीज़ें डिसाइड करता है। जैसे अगर आप देखोगे, निफ्टी जब तक अच्छा था ना, हर कोई स्टॉक भाग रहा था, हर कोई स्टॉक उठ उठ के भाग रहा था, स्पेशली जो हमारे लार्ज कैप के स्टॉक्स है। बट जैसे ही अभी मार्केट खराब हो गया ना, तो स्टॉक वहीं के वहीं है। दिन में 2-3% ऊपर जाते हैं, फिर जब क्लोज होता है तो आके वहीं पे जाके क्लोज हो जाते हैं। ओके। तो इसीलिए हमको जो निफ्टी है, जो बेसिकली अंडरलाइंग फ्लो है उस इंडेक्स में, या फिर उस कंट्री में अंडरलाइंग फ्लो, जो अभी अभी हमारा क्या हो रहा है कि बाहर के कंट्रीज से बहुत सारा पैसा आ रहा है, राइट, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ जीरो इंटरेस्ट रेट से मिल रहा है। तो अगर किसी को जीरो इंटरेस्ट रेट से मिलेगा, अगर यूएस में डालेंगे तो यूएस में आपको मिलेगा 5%, 6%। इंडिया में डालेंगे, वो लोग क्या करते हैं, इंडिया में डालते हैं स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप में डिवाइड करके, तो उनको ऑन एन एवरेज 10-12% मिल जाता है, विच इज़ बहुत ही अच्छा रिटर्न है उनके लिए। और ऊपर से हमारा इंडिया का रुपीज भी डिप्रेशिएट हो रहा है, तो उनको वैसे भी ज़्यादा पैसा मिलता है। जो वो लोग डालते पैसा डॉलर में, $1 का पहले उनको मिलता था 47-48 रुपीज़, अभी में उनको मिल रहा है 80 रुपया। तो वो लोग एनी वे प्रॉफिट में है, राइट। तो इस तरीके से जब तक अंडरलाइंग जो हमारा माइक्रोज है ना, माइक्रोज और माइक्रो, वो अगर दोनों अच्छे हैं, तो वो हमारा करते हैं 30%। तो 50% इज अ फंडामेंटल एनालिसिस, 30% is our macro, and 20% is our technical analysis. Okay, 20% बोल दो या 15% बोल दो, और 5% is our luck. So इस तरीके से हमारा टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड होता है किसी भी स्टॉक में एंट्री करने के लिए। ओके। तो भाई दिस इज द, मतलब हम लोग अभी स्टॉप करते हैं। आई थिंक आधा घंटा हो गया ऑलमोस्ट हमारा। ओके। तो अ, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज हम लोग ग्रुप में भी डालेंगे। तो आपको अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। देन कल से हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के थोड़ा सा बेसिक में शुरुआत करेंगे। जैसे ये जो कैंडल स्टिक्स है, उसको कैसे पढ़ते हैं, कैसे डिफरेंट टाइप के चार्ट्स है, थोड़ा बेसिक में जाएंगे, ताकि फिर आप अपना जो फाउंडेशन है वो होने के बाद आप खुद ही उसको एक्सेल कर सकते हो। टाटा मोटर्स का बता सकते हैं देख के चार्ट एक बारी, मतलब अगर बाय करना हो तो? मत करो। नहीं करना? नहीं नहीं, टाटा मोटर्स का क्या हो गया ना, कि टाटा मोटर्स जो है ना, वो मोस्टली ना क्या बोलते हैं, उनके जो लॉन्चेस है ना, उनके लॉन्चेस अभी थोड़े फंस गए हैं। लॉन्चेस क्यों फंस गए मैं आपको बताता हूँ। देखो टाटा मोटर का कैसा था ना, टाटा मोटर चिप एनीवे बहुत शॉर्टेज को डेट, कुछ आया था इनका। हाँ हाँ, चिप चिप का बहुत बड़ा शॉर्टेज है।
अगर आप आपको टाइम मिलेगा ना, एक चिप टेक्नोलॉजीज पे पराग पारेख का एक वीडियो आया है यूट्यूब पे, ठीक है। उन्होंने 7 दिन पहले डाला था कि जो चिप बनाने वाली जो कंपनीज है ना चाइना में एंड बहुत जगह, वो बंद हुई है लॉकडाउन के कारण, ठीक है। और उनको जो सप्लायर आने वाले थे ना वो भी घट गए, बिकॉज आपको पता है बिजनेस में इतना लॉस हो गया कि वो लोग उबर ही नहीं पाया। और चाइना में कैसा रहता है ना, चाइना में मैक्सिमम थिंग हैपन ऑन लेवरेज। मतलब वो लोग क्या करते हैं ना, वो लोग एक चीज उठाते हैं, उसका कॉपी करके वो लोग बहुत बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बेचते हैं, ठीक है। तो वो जो एक चीज जो उन्होंने उठाया है ना, अगर वो कॉपी करके बेचने में जब तक वो लोग वॉल्यूम में कोई खरीदेगा नहीं ना, तो चाइना वाले लॉस में रहते हैं। उनका पूरा गेम ही वॉल्यूम में रहता है। आपका बिजनेस है, आपको पता होगा, राइट। जैसे टॉयज वगैरह है तो वो लोग वॉल्यूम में बेचते हैं। वही टॉयज अगर इंडिया में बने गए तो इंडिया में वो लोग उतना वॉल्यूम में नहीं बेच पाते, बिकॉज कंपटीशन ड्यू टू जो चाइना से आता है उसके कारण। तो बेसिकली क्या होता है कि चाइना वाले वॉल्यूम में बेचते हैं ना, तो लॉकडाउन के कारण उनका वॉल्यूम पे हो गया क्या, ओके। तो उसके कारण क्या हो गया कि बहुत सारे गाड़ी कंपनियों ने चिप नहीं खरीदे एंड ऑल दो स्टफ्स। तो डिमांड कम हो गया अल्टीमेटली। जो जो सबसे लोअर मोस्ट लेवल पे, जो लोएस्ट मोस्ट लेवल पे जो आपका ये है सप्लायर, वो आपको सप्लाई नहीं कर पाया चीप टेक्नोलॉजीज के लिए जो जो चीज़ें लगती है। उसके कारण अल्टीमेटली आपका सप्लाई कम हो गया। डिमांड आपका अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट सप्लाई कंपेरेटिवली आपका ठप पड़ा हुआ है। तो जब तक अभी ये सप्लाई नहीं रहेगा तब तक ये चीप का डिमांड रहेगा, और उसके कारण ही ये टाटा मोटर हिट हो रहा है। देखो अभी ऐसा नहीं है कि चिप्स अवेलेबल नहीं है, चिप्स अवेलेबल है, बट टाटा मोटर को इसके लिए पैसा खर्चा करना पड़ेगा, जो कि उनको महंगा पड़ेगा, और उनका ऑलरेडी बहुत लॉस है। अगर मैं टाटा मोटर का आपको दिखाऊं ना, ठीक है, हम लोग उसका ना एक फंडामेंटल चेक करते हैं, ठीक है। अभी देखो टाटा मोटर का अगर आप देखोगे, ये देखो आर ओ सी देखो, आर ओ ई देखो, देखो क्या है। अगर आप उसमें कैपिटल डाल रहा है, जैसे जो उसमें 100 रुपये डाल रहा है ना, उसका वो सिर्फ 6 रुपये कर पा रहे हैं, ठीक है। रिजल्ट तो सारे नेगेटिव है, तो आर ओ ई देखने में कोई सेंस ही नहीं है, ठीक है। बुक वैल्यू भी अगर आप देखोगे ना, ऑलमोस्ट 2K बुक वैल्यू पे है, ठीक है, ऑलमोस्ट 2K, ठीक है। इसका प्लेज भी है। और यहाँ पे देखिए डेट टू अर्निंग, मतलब जितना अर्न कर रही है उससे 2.5 गुना ज्यादा उसके ऊपर कर्जा है, ठीक है। तो अभी फंडामेंटली तो ये कंपनी अच्छी नहीं है, चलो ठीक है। अभी ये देखते हैं कि इसका आगे का क्या स्कोप है, ठीक है। देखो प्रमोटर जो इंक्रीज कर रहा है ना, ये सब टाटा सन के भरोसे पे है, ठीक है। टाटा मोटर जो है ना वो कुछ नहीं खरीद रहा है, जो टाटा सन है ना वो पैसा डाल रहा है अपने कंपनियों में, ताकि उनका हालत थोड़ी सुधरे, ओके। तो अगर आप देखोगे तो ये सब तो बहुत बुरे शेप में है, तो ये देखने में कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए डेट भी बहुत खराब है, तो ये देखो नेट नेट प्रॉफिट मार्जिन देखो, ये 6 परसेंटेज का है। तो 6% मतलब जो 100 रुपये अगर उस पर डालोगे तो आपको 6 मिल रहा है, या 6 ये कंपनी कमा रही है, ठीक है। सेल्स देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए सेल्स 66,000 था। लेट्स चेक द ग्रोथ। तो अगर आप ग्रोथ देखोगे तो ग्रोथ यहाँ पे अच्छी हुई है मार्च क्वार्टर में, क्वार्टर एंड क्वार्टर के कारण, ठीक है, क्योंकि ये इस क्वार्टर में उसका ग्रोथ बहुत गिर गया था। यहाँ पे देखो ये 71,000 से 62,000 आया था, इसीलिए 80 यहाँ पे देखिए ये थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, अदरवाइज ये तो बहुत बुरे शेप में है, ठीक है। ऑपरेटिंग मार्जिन भी अगर आप देखोगे तो अभी थोड़ा सा 15-16% पे पहुंचा है, बट अभी देखना अभी जब जैसे उनको महंगी चीप खरीदनी पड़ेगी ना, ये आपको प्रॉफिट मार्जिन 10 के नीचे जाते हुए दिखेगा, ठीक है। इसी कारण एक्चुअली स्टॉक बढ़ा था, जो बढ़ रहा था ना, ये बढ़ रहा था इसी के कारण ये। एंड जो आपका, और ये क्यों बढ़ रहा था, क्योंकि आपका जैगुआर का जो ये सेल है ना, वो चाइना में थोड़ा सा बढ़ रहा था, जैगुआर का सेल, इसीलिए ये बढ़ रहा था। तो अगर आप देखोगे, ये देखो इंटरेस्ट कितना पे कर रहा है, 2,000 से 2,500 मतलब करोड़ का, ये जस्ट बैंक का इंटरेस्ट पे कर रहा है, क्योंकि डेट ही इतना है, ठीक है। तो अगर ये साल वाला अगर कंसिडर करेंगे, अभी अगर हम लोग इसको साल वाला हम लोग छोड़ देते हैं, मेरे को पता है यहाँ पे बहुत बुरे शेप में ईपीएस वीपीएस सब निगेटिव में है, ठीक है, क्योंकि ये लॉस ही इतना मार रहा है। देखो ये इतना इंटरेस्ट एंड ऑल दोस पे कर रहा है ना, उसके पास कुछ खुद कुछ बच ही नहीं रहा है,
कैश फ्लो तो इसका पक्का निगेटिव होगा। ठीक है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, ये देखो रिजर्व देखो, कम हो गया रिजर्व। 61,000 का रिजर्व था, अच्छा खासा मार्च 20 में 54,000 पे आ गया, 6,000 से रिजर्व कम हो गया। और बोरोइंग देखो कितना बढ़ गया, 124 से 142 हो गया। सो क्या सेंस बनता है भाई टाटा मोटर में घुसने में? पैसा फंस जाएगा, बस इतना ही है। हो सकता है कुछ दिन थोड़ा ऊपर नीचे हो, बट जैसे ही न्यूज़ बंद हो जाएगी ना टाटा मोटर की, वो फंस जाएगा पैसा। अभी देखो ये कैश फ्लो में भी देखो कितना जा रहा है उसका, कुछ नहीं बच रहा। प्रमोटर थोड़ा सा बड़ा है, होल्डिंग 4%। बट ये देखो एफ आई है और डी आई है। ठीक है, मतलब अभी थोड़ा सा बढ़ रहा है, एफ आई डी आई पैसे डाल रहा है। बट इसके कंपैरिजन में अगर जाना है ना, तो एक कंपनी है रिकॉल करके। ठीक है, ये कंपनी अच्छी है। अगर इसका देखोगे ना, इसका आर ओ ई अच्छा है। और ये बनाती क्या है इसका थोड़ा देख लेना बिजनेस। अगर आप इस पर क्लिक करोगे ना, स्क्रीनर.इन पे जाके या प्रीकॉल सर्च करोगे, उसके इस पे साइट पे जाओगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या प्रोडक्ट है एंड ऑल दो स्टफ्स। ठीक है, तो ठीक है, ये मैंने भी अभी इसको पढ़ा नहीं है, बट मैंने मतलब इसका बिजनेस नहीं पढ़ा है। बट ये अच्छी कंपनी है, प्रीकॉल है या फिर और एक कौन सा था। बेसिकली मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि किसी अ, अ, गाड़ी वाली कंपनी में जाना है ना, तो ट्राई करो कि अभी यहाँ पे देखो कि ये देखो बॉश अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे आर ओ ई अच्छा है। बॉश का वही है, उनके पास बहुत सारे पेटेंट है। कुछ नहीं होगा तो पेटेंट बेच के भी वो कंपनी चल सकती है। मिंडा इंडस्ट्रीज भी अच्छा कंपनी है कंपेरेटिवली, राइट। टाटा के कंपैरिजन में बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज है। तो टाटा मोटर में ऐसा भी अभी पैसा मत फंसाओ सर। मैं आपको टेक्निकली बताता हूँ क्यों। मैंने वो देखा है, मैं आपको बस बता रहा था कि ठीक है। तो अभी अगर आप देखोगे ना, तो मैक्सिमम कंपनी जो होती है ना, सॉरी, मैक्सिमम जो लोग होते हैं ना, कोई भी कंपनी से जो एग्जिट मारते हैं ना, तो वो लोग 20 डे मूविंग एवरेज को रेफर करते हैं। ठीक है, एज अ स्टॉप लॉस। जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज होगी ना, जो भी हमारे अल्गोज होते हैं ना, बड़े बड़े अल्गो जानते हो ना। तो जो अल्गोज होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं कि किसी कंपनी में एंट्री करते हैं, जैसे ही वो स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकलता है या फिर 10 मूविंग एवरेज के ऊपर निकलता है, और उनका जो स्टॉप लॉस होता है ना, ये 20 या 50 डे मूविंग एवरेज होता है। तो अगर आप देखोगे ना कि 20, ये देखो यहाँ से ये ब्रेक हुआ टाटा मोटर 358 से, यहाँ से देखो 350 360 से ब्रेक हुआ है। और ये देखो ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल का वॉल्यूम देखो कितना स्ट्रांग वॉल्यूम से हुआ है ना। तो जब ये इतना बड़े वॉल्यूम से होता है ना, तो ये सजेस्ट ये करता है कि कोई बड़ा प्लेयर ने एग्जिट मारा है। ये देखो ये जो बड़ा, कोई बड़ा प्लेयर एग्जिट मारता है ना, बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड या वो कोई बहुत बड़ा एफ एन कोई एफ आई, ओके, तो कोई बड़ा अगर प्लेयर एग्जिट मारता है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, एक बड़ा चंप मारते हैं, एग्जिट करते हैं। एंड देन थोड़ा 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 करके अभी क्या होगा पता है कि ये स्टॉक यहाँ से यहाँ तक जाएगा, 325 तक। ठीक है, और फिर से वो गिरेगा, और फिर कोई बड़ा प्लेयर एग्जिट करेगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर वो गिराएंगे, क्योंकि उनको एक बार में तो पूरी एग्जिट मिलती नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, जब एग्जिट करते हैं ना, तो टुकड़ों में करते हैं। मैं आपको बताऊं, जब ये गिरना शुरू हुआ था ना, तब की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये वाला लाल वॉल्यूम दिख रहा है आपको, रेड वाला ये। हम्म। ठीक है, तो ये देखो ना, यहाँ पे ना कोई एग्जिट मारा है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ना, ये वाला देखो, ये वाला रेड वॉल्यूम, ये वाली कैंडल, यहाँ से जो एग्जिट मारा है वो बंदे ने, फिर देखा है उसने थोड़ा और वेट किया, वो स्टॉक थोड़ा ऊपर जाने के लिए, ओके यहाँ तक गया। फिर यहाँ पे जैसे ही रेड हुआ ना, यहाँ पे देखो ये जो रेड है ना, यहाँ पे उसने एग्जिट करना शुरू किया, थोड़ा 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 थोड़ा।
ताकि अगर एक बार में अगर एग्जिट कर लेगा ना तो स्टॉक उसको, देखो अगर एक बार उसके पास समझ लो दो 25-30 करोड़ की क्वांटिटी है, राइट। एक बार में अगर वो 11-12 करोड़ एग्जिट करेगा तो वो स्टॉक नीचे आ जाएगा। ठीक है, नीचे आ गया ना वो स्टॉक, जैसे यहाँ से यहाँ पे नीचे गिर गया तो उसको यहीं पे बेचने पड़ेंगे सारे, राइट। तो ये वो कब करते हैं, जब कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है। बट अगर उनको नॉर्मली एग्जिट करना है ना तो वो लोग क्या करेंगे, थोड़ा एग्जिट मारेंगे, फिर नॉर्मल रिटेल जो रहते हैं आपके मेरे जैसे, वो थोड़ा 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 के बाय करेंगे, सोचेंगे कि यार ये तो अच्छा ऊपर जा रहा है, नीचे गिरा है, अच्छा अपॉर्चुनिटी है। फिर क्या करेगा, ये वापस अपने को फिर से किल करेगा, फिर से हमको किल करेगा, फिर हम लोग थोड़ा नीचे आएंगे। फिर थोड़ा सा नीचे आने के बाद हमको लगेगा यार थोड़ा और एवरेज करते हैं, यहाँ पे आप एवरेज करोगे, थोड़ा ये और नीचे आएगा, आप थोड़ा और यहाँ पे एवरेज करोगे। फिर क्या होगा, फिर यहाँ से और कोई एंट्री करेगा आपको छोड़ के, कोई और जिसका पैसा बचा है, वो बोलेगा यार स्टॉक तो बहुत सस्ते में मिल रहा है मुझे, वो वापस एंट्री करेगा और स्टॉक थोड़ा सा और नीचे आएगा, जैसे पहले यहाँ पे आया था, यहाँ पे थोड़ा नीचे आएगा, यहाँ पे वापस वो किल करेंगे। एंड देन फाइनली में ऐसा किल करेंगे ना, तो उसके बाद में हमको समझ में आएगा, फिर हमारे रिटेल लोग एग्जिट करना शुरू करेंगे, म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल दो स्टफ से एग्जिट करेंगे। तो कभी भी एग्जिट मतलब अभी एंट्री मत करो। अगर आपको एंट्री करना है ना, मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे एंट्री करना है। सॉरी मोहित भाई, अगर एंट्री करना है ना तो एंट्री करना है यहाँ पे 340 पे, जब ये दोनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर जाके सस्टेन करेगा। जैसे ये 340 के ठीक ऊपर जाएगा ना, बिंदास बाय करना, तब तक इसको हाथ भी मत लगाना, टाटा मोटर को थोड़ा दूर ही रहो। क्योंकि ये जो जिस बड़े बंदे ने सेल किया है ना, उसको कोई तो मतलब वो बंदा या तो वापस आना चाहिए, या फिर कोई काउंटर ट्रेंड जनरेट होना चाहिए। जब तक 340 के ऊपर ना जाए ना टाटा मोटर पे, हाथ मत लगाना। और अगर और भी सिक्योर खेलना है तो 360 के ऊपर बाय करो, मजे में रहो। बट अगर चाहिए तो 340 के ऊपर लेट से 20-30% ऐड कर लो, एंड देन 360 के ऊपर बाकी का डाल देना। ठीक है भाई। ठीक है कृष्ण। ठीक है यार, चलो ठीक है, फिर क्लोज करते हैं। ओके, थैंक्स यार, थैंक्स ज्वाइन करने ओके के लिए। ओके।